please be serious. Mechanics. What exactly is mechanics? It is a science which deals with, let me explain, sir. Let me write, then I'll explain. It is a science which deals with state of motion or rest under the action of forces. Right. Listen, it is a science which deals with the state of motion or rest under the action of forces. The first thing here is, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये फोर्स होता क्या है. Okay, leave it, sirs. Leave it. First, let me give the definition. What is mechanics? It is a science which deals with either the state of rest or motion under the action of forces. एक बात समझ में नहीं आया सर. क्या समझ में नहीं आया सर? ये फोर्स होता क्या है? देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी. वेट सुमित, वेट. तो इस पे थोड़ा फोकस करो. लेट मी फोकस ऑन दिस. देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे थोड़ा. अभी क्वेश्चन मार्क में है सर, आई डोंट नो व्हाट इज अ फोर्स. लीव इट. तो मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज फोर्स, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. व्हेनेवर you are applying force, you may see a particular body which you are considering. It may move, or if it is moving, if I apply opposing force, it may come to rest. So all these you are studying in your mechanics. Science. Can you tell me what is science? It is based on some natural laws. It is based on some natural laws. Under those conditions, our system should obey those laws. It is based on some natural laws. Nature के थोड़े laws होते हैं, and our system under some conditions, under particular conditions, should obey those laws. अब देखते हो laws क्या क्या है. Yes, हर एक law, parallelogram law है, triangle law है, polygon law है. उसके बाद क्या है? Newton's laws है. उसके बाद Newton's 3 laws नहीं, Newton's law of gravitation है. It has to follow those laws. That is our science. हम भी नेचर को फॉलो करना है सर, लेकिन नहीं फॉलो करते तो आप वायलेट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. नाउ दिस मैकेनिक्स इज classified into rigid body mechanics and deformable body mechanics. Yes. अब देखते हैं सर. In deformable will be studying SOM, will be studying fluid mechanics. Fluid में क्या होता है? Continuous deformation होता है. Under the action of shear force, the fluid deforms continuously. In SOM, there is a deformation, but we are studying about solids, deformable solids, mechanics of solids. That deformation is up to some extent. After that, there is no deformation. I'm not talking about creep also. तो थोड़ी देर के बाद वो deformation. For example, it's something like this. हम chair पे बैठे हैं sir. We are sitting on a chair. Initially, if you observe, under the action of load, there is a small deformation of a leg. Chair का पैर जो होता है थोड़ा deform होगा. क्या वो continuously deform हो रहा है? नहीं. लोड तो है. अगर continuously deform होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे. ऐसे चेयर को यूज नहीं करेंगे, वो डिफॉर्म होकर रुक जाएगा. लेकिन फ्लूइड, wherever there is a shear force, it flows, it deforms continuously, जो हम फ्लूइड में पढ़े थे. So deformable bodies भी पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, क्योंकि what is mechanics? It is the deals with motion or rest under the action of forces. So under the action of shear force, fluid is moving continuously, deforming continuously, वो भी स्टडी करना है. That is also mechanics. देखो, for example, now there is a beam, I have applied a load. So under the action of this load, मान लो ये थोड़ा bend हो गया. Yes, under the action of forces, this member is, we are studying the action, under the action of these forces, how it is deforming. ये पढ़ रहे हैं हम SOM में. It is also mechanics. Then why separately engineering mechanics? Great sir. Great sir. जब भी आप स्टार्ट करते हैं सर सब्जेक्ट, if I start with complex concepts, will you read? Will you read? No. सर क्वेश्चन जब पूछा तो आंसर दीजिए सर. So will you read? Never sir. Never. भाग जाएंगे सर. तो इस साल का पहला सब्जेक्ट में स्टार्ट किया सिंप्लीफाई करने के लिए मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये पढ़ रहा है सर. हम सर नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं. पहले हम देखेंगे रिजिड बॉडी होता क्या है. रिजिड बॉडी होता क्या है? फॉर एग्जांपल, टेक सम बॉडी ऑफ एनी शेप. ये एक पॉइंट लीजिए बॉडी के अंदर, ये एक पॉइंट लीजिए. लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी. अभी फोर्स का डेफिनेशन नहीं दिया सर. फोर्स का प्लीज उत्कर्ष, प्लीज आप कमेंट मत करना सर. आई हैव नॉट गिवन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. थोड़ा इंतजार करो सर. ए और बी है. Where are in AB? In the body. Please don't think that every time I am taking points in the body, it can be on the body also. It can be on the body or in the body. ये कब है सर points? Before the application of any external force. हम कोई force apply नहीं किए. Now you apply force. Don't worry, I will tell you what exactly is a force. Please don't worry. तो अभी तो एक blind idea तो है ना रे.
फॉर एग्जांपल ये देखो ब्लाइंड आइडिया तो है ना, ये फोर्स है, फोर्स अप्लाई, एटलीस्ट ब्लाइंड आइडिया तो है ना, ब्लाइंड आइडिया फोर्स का ब्लाइंड, चलो आई हैव अप्लाइड फोर्स F1 F2 जो भी है अप्लाई किया, ध्यान से सुनो, we have applied forces. Even under the application of force, the distance between any 2 points in the body or on the body do not change. सर ये थोड़ा डाउट आ रहा है सर, गुड क्वेश्चन। अब देखो सर, ध्यान से सुनो, whenever we apply force, definitely there will be deformation. Agreed or not? Agreed or not? होगा ही होगा सर, there will be deformation. There will be deformation. When there is a deformation, there is a change in the distance between 2 points under consideration. जब बॉडी को आप अप्लाई फोर्स अप्लाई किए तो जाहिर सी बात है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा। But you said rigid body there is no change. Sir, let me put it this way. We have to make some idealizations. What do I mean by idealizations? Without that, it is difficult to carry out. एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है मुझे, एक प्रैक्टिकल फिजिकल एंटिटी को, एक प्रैक्टिकल फिजिकल थिंग को मुझे उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। सो इफ यू वांट टू मेक अ मैथमेटिकल मॉडल, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं सर, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल गेयर है, देयर आर टीथ ऑन द गेयर, तो एवरी टाइम आई एम ड्राइंग ऑल टीथ, जस्ट यू ड्रॉ ईच सर्कल, दैट्स इट ना, ये सर नो सर, तो ये आइडियलाइजेशन हम करते हैं सर, सेम इज द केस। सो एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के लिए वी मेक सम आइडियलाइजेशन, वी सिंप्लीफाई। तो रिजिड बॉडी तो होगा ही नहीं, देयर विल बी डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, नो मैटर मोर और लेस। ध्यान से सुनो, अगर डिफॉर्मेशंस, इफ द डिफॉर्मेशंस आर स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी का साइज है उस साइज के रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द बॉडी, इफ द डिफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी स्मॉल, वी ट्रीट इट एज रिजिड। इससे बहुत फायदे हैं सर, कुछ बता सकते हैं सर फायदे? बोलेंगे फायदे है, फायदे है, रिजिड बॉडी फायदा है, रिजिड बॉडी फायदा है, क्या फायदा है? इंटरव्यू में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? Point number 1. Listen, sir. Listen, sir. Let us take deformable bodies. I have applied a load. सुनो. Let us take a deform. Sir, interview के साथ पढ़ेंगे sir. There is one body. There is another body. ध्यान से सुनो. Body A, body B. I have applied same force. सुनो. I have applied same force. Assume that it has deformed up to this, and this has deformed up to this. Are the deformations same? No, there is a deformation. ये डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? Is it depending on force? No, even though the force is same, the deformations are not same. It means it is depending on the material. अगर मैं रिजिड बॉडी का assumption करूंगा, if I make the assumption of rigid body, for example, this is body 1, this is body 2. Listen, sir. This is body 1 and this is body 2. I have applied a force. No deformation. Rigid body का मतलब क्या? There is no change in the distance between any 2 points. So if it is A, it is B. If it is A, it is B. There is no change. Exactly the same. So under the action of this external force, both are behaving same. So the best or the biggest advantage of rigid body analysis is it is independent of the material. ये बहुत important बात है, थोड़ा वाली। तो rigid body का खासियत क्या है ना? Whenever I say rigid body, the first thing is you don't have to consider which body is that. Is it elastic? Is it rubber? Is it cork? Is it क्या बोलते हैं mindstream? ना, सिर्फ rigid body बोलेंगे, कुछ भी रहने दो rigid body। ये एक एडवांटेज है। धीरे धीरे और एडवांटेजेस बताऊंगा rigid body के, समझ में आया सर? तो मेरा फर्स्ट assumption in mechanics is the body is treated as rigid. अरे होगा या नहीं होगा छोड़ दो, in reality body may not be rigid. इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रियलिटी से थोड़ा दूर जाते हैं, फ्रॉम रियलिटी विल बी अ बिट फार। तो वो रियलिटी को क्लोज आने के लिए वी स्टडी डिफॉर्मेबल बॉडीज। सॉन्ग पढ़ेंगे रे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा गलतियां करेंगे, बॉडी डिफॉर्मेबल है फिर भी रिजिड लेके करेंगे, लेकिन विल बी, मतलब अगर 100 रीच होना है तो विल बी रीचिंग 75, गलत नहीं ना सर? अरे if my aim is 100, if I reach 70, there is nothing wrong ना, then I put some more efforts to reach the remaining 30. तो इंटरव्यूज में पूछेंगे what is the advantage of treating the body as rigid body, then your answer should be the body is treated as rigid body, so when I treat it as a rigid body there is no need for me to take which material it is made of, that's it, there is no problem at all. Very good sir, I'll give you some more advantages. One more thing dear students, one more thing. सब लोग जिंदा है रे, all of you are you there? सब लोग जिंदा है या मर गए सर? दीक्षा तो मर गई। नो देखो सर, वाह देखो केयरफुली देखो, यहां तक हो गया सर। सो रिजिड बॉडी का एक एडवांटेज हो गया, नो डिफॉर्मेशन। नाउ प्लीज लिसन सर, इन मैकेनिक्स वी डील विथ ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस।
सर आपने फोर्स 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 बोल रहा है लेकिन फोर्स का मीनिंग ही नहीं बताया। कोई बात नहीं सर। सो आप बताइए व्हाट इज मैकेनिक्स? इट इज अ साइंस which deals with the state of rest or motion of rigid body under the action of external forces। अब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सी मैकेनिक्स ओवरऑल मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? ओवरऑल मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। एंड देखो मैकेनिक्स में, जनरल मैकेनिक्स में आई नेवर सेड रिजिड बॉडी। एंड यूजलेस फेलोस आप देखो यहां पे कहीं डिड आई यूज द वर्ड रिजिड बॉडी? नो। यहां पे कहीं आई यूज एक्सटर्नल फोर्सेस? नो सर। यहां पे देखना प्लीज 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 इधर देखना डियर स्टूडेंट्स, ये देखना आई नेवर यूज द वर्ड एक्सटर्नल फोर्स, आई नेवर यूज द वर्ड इंटरनल फोर्स, आई नेवर यूज द वर्ड रिजिड बॉडी। आई सिंपली सेड इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडी under the action of forces। यहाँ पे forces it may be internal, it may be external। I'll explain what is internal, what is external। यहाँ पे body बोला, it may be rigid or deformable। तो mechanics is a broader term। mechanics is a broader term। उस mechanics में सब branches है, हमारा engineering mechanics, हमारा SOM, हमारा fluid mechanics आएंगे। तो अब बोलो क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? engineering mechanics। What is engineering mechanics? It is the science which deals with the study or it deals with the state of rest or motion of a rigid body under the action of external forces। अब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बात करूंगा तो बॉडी के प्लेस में रिजिड बॉडी आएगा और फोर्सेस के प्लेस में एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अगर बॉडी है, सिंपली बॉडी है, फोर्सेस है, तो जनरल डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स इट कैन बी फ्लूइड मैकेनिक्स, इट कैन बी सेट ऑफ मटेरियल्स। नहीं आ रहा सर आपको समझ में? नहीं आ रहा सर आपको समझ? आया नहीं रे। सो नाउ आई टेल व्हाट एग्जैक्टली इज योर engineering mechanics। it is actually applied science sir। engineering okay sir, okay sir, okay sir, okay sir, okay sir, okay sir। it is the science which deals with the state of rest or motion of anyone motion of rigid bodies वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है सर? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा पेशेंस रखो। व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटर्नल इंटरनल? ऐसा क्या? इधर देखो सर, देयर इज अ मेंबर। अभी इस सब्जेक्ट में we will not talk about stress, strain, deformation, elongation। now one student has asked me a question, सर जी। मैं बोला हाँ, बोलो बेटा। तो वो स्टूडेंट ने बोला सर आप तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं बोला हाँ, तो फिर क्या डाउट है? तो सर यहाँ पे तो आप स्प्रिंग अटैच किए, यहाँ पे तो आप देखो दिस इज एक्चुअली अ स्प्रिंग। सर यहाँ पे तो स्प्रिंग अटैच किए, स्प्रिंग इज अ डिफॉर्मेबल वन, स्प्रिंग इज अ डिफॉर्मेबल वन। वेरी गुड, ध्यान से सुनो सर। I will see just what spring is doing on my rigid body। मैं स्प्रिंग को नहीं पढ़ा हूं सर, आई एम नॉट स्टडीइंग स्प्रिंग। हाउ मच फोर्स इट इज एक्सर्टिंग ऑन माय रिजिड बॉडी। ये मेरा बॉडी है। देखो मैकेनिक्स में मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, इस पे फोकस कर रहा हूं, स्प्रिंग पे नहीं सर। ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सिमिलरली बुलेट वाला देखो इधर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेरे हाथ पे, समझ गए ना? या फिर ये स्टोन है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो देख रहे हैं सर आप। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। यस आई एम कंसीडरिंग रिजिड बॉडीज ओनली, आई एम कंसीडरिंग रिजिड बॉडीज ओनली। प्लीज बताइए इज इट क्लियर सर? बोलो सर इज इट क्लियर? तो ये मत सोचना सर स्प्रिंग डाल दिए, स्प्रिंग इज नॉट अ रिजिड, इट इज डिफॉर्मेबल। तो हम वो स्प्रिंग नहीं देख रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट स्प्रिंग ऑन माय रिजिड बॉडी। समझ गया ना? अब बोलेंगे सर मेरा हाथ भी तो डिफॉर्मेबल है ना, थोड़ा अगर फोर्स लगेगा तो दब जा रहा है। अरे इतने बड़े हाथ में इतना छोटा सा डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। नहीं आ समझ में? बुलेट को जब मैं खींचा, इतने बड़े हाथ में छोटा सा डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। समझ गए? अब देखो प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी अप्लाई दिस फोर्स। अब ये बताओ ये कौन सा फोर्स है सर? इज इट एक्सटर्नल और इंटरनल? इट इज एक्सटर्नल। In engineering mechanics we'll be dealing with the effect of this force only। so now observe here clearly, let me cut this। इसको कट कर देंगे सर, let me cut this, let me cut this। now say this is section x, let me cut this। is it in equilibrium? yes it is in equilibrium। now देखो सर, देखो अब आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए this is our force F। is it in equilibrium? absolutely no sir, absolutely no, it's not in equilibrium। but already it is in equilibrium means there is a resisting force developed।
एंड अगर आपको ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये भी F होना ही है। ये कहां से आया सर? आई हैव नॉट अप्लाइड सर। इस सेक्शन पे अंदर से जनरेट हुआ, अंदर से। फॉर एग्जांपल आप एक अपने फिंगर को यहां फिक्स है, खींचो खींचो, दिस इज एक्सटर्नल बट यू आर फीलिंग समथिंग इंटरनल। यू आर, देखो ये करो रे, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, इसको पुल, अरे पेन हुआ, देखो वो इंटरनल है। मींस इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी आर नॉट स्टडीइंग दिस, दिस इज इंटरनल, दिस विल बी स्टडीड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये यहां पे नहीं पढ़ेंगे। दिस इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड दिस इज इन आवर सॉम विल बी स्टडी। सो शायद आपको समझ में आया होगा। शैल आई प्रोसीड सर? Great. Great, sir. Now observe here. Observe here. Our physical quantities are categorized into, अब धीरे धीरे फोर्स की तरफ आएंगे सर, फोर्स की तरफ आएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा डेवलप किया गया सर। एरिस्टोटल, कौन है सर एरिस्टोटल? ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ फिलोसोफर। एरिस्टोटल इज अ फिलोसोफर। तो उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्या लेना देना है सर? यू नो, लीवर का पहले इस्तेमाल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट, यस, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल साहब यूज्ड। उसके बाद आर्किमिडीज, उसके बाद गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन साहब। एंड व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग, yes, definitely under the external force. For example, Nitish has asked one question, sir, what is the advantage of studying only external forces? Very good. इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर नितिश ने। क्या एडवांटेज है सर? वेरी गुड। आप एक स्ट्रक्चर बनाए सर, एक बिल्डिंग बनाए सर, एक ब्रिज बनाए सर, हाउ मच लोड इट इज रेजिस्टिंग, कितना एक्सटर्नल लोड ले रहा है, पढ़ना जरूरी है या सिंपली ऐसे डिजाइन कर दिए? ब्रिज को डिजाइन करना है तो इतना जगह बचा है, दिस मच प्लेस इज अवेलेबल, उस प्लेस को हम उस प्लेस पे ब्रिज डालेंगे, कुछ भी डाल दो उस पे, ऐसे करेंगे या फिर कुछ एनालाइज करेंगे, हाउ मच एक्सटर्नल लोड इज देयर, हाउ मच विल इट रेजिस्ट? नहीं चाहिए सर। आपका बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग छत के ऊपर 10,000 लोगों को लाके बिठाओ, बिठाओ। यस, ही सेड सर दे आर नॉट रिजिड ना सर। वेरी गुड। मैं क्या बोला सर रिजिड का? कंपेयर्ड टू डायमेंशंस, बॉडी के डायमेंशंस के कंपैरिजन में, if the deformation is very small, we take it, we idealize it as a rigid body. बोला नहीं बोला सर? और एक बात है सर, वो तो स्टैटिक कंडीशन में है, दैट इज मैकेनिक्स अंडर स्टैटिक कंडीशंस। लोकोमोटिव जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, कितना फोर्स लगाने से गाड़ी को खींच सकते हैं हम? चाहिए या नहीं चाहिए सर? गाड़ी अपने आप जा रहा है सर। How much force I need to apply? What pulling force is required? What external pulling force is required so that I can cause the motion of the vehicle? नहीं चाहिए सर। सैटेलाइट को लॉन्च करना है ऑर्बिट में, कितने फोर्स से लॉन्च करना है? नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए सर, चाहिए सर। That's why we study. चेयर के ऊपर बैठ रहे आप, चेयर को डिजाइन किए, मैं खली को लाके बिठाऊंगा चेयर के ऊपर, मैं खली साहब को लाके बिठाऊंगा चेयर के ऊपर, आपका जो पतला सा चेयर है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, खत्म। विल इट रेजिस्ट? विल इट रेजिस्ट? तब मैकेनिक्स याद आएगा, सर ने बोला था मैकेनिक्स पढ़ने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ने के बाद इंटरनल को आएंगे हम। वेरी गुड सर। न्यूटन साहब का जो मैकेनिक्स है ना, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब वही पढ़ेंगे सर हम, लेकिन आइंस्टाइन साहब आने के बाद थोड़ा गड़बड़ कर दिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, अब वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आ गए। लेकिन हम, यस, स्टिल दीज आर रेलेवेंट, स्टिल न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज रेलेवेंट, तो मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, सिलेबस में वही है, हम वही पढ़ेंगे, वो एक्चुअली एप्लीकेबल भी है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम उतना लाइट के स्पीड से नहीं जा रहे सर। तो आप बोलेंगे सर इंस्टेंस थ्योरी इज रेलेवेंट ना, व्हाई आर यू नॉट टीचिंग इंस्टेंस थ्योरी? मैं अभी उतना स्पीड से बुलेट ट्रेन से नहीं जा रहा हूं, मैं बात कर सकता हूं बुलेट ट्रेन के लिए, प्रैक्टिकल अप्लाई करना मेरे से नहीं हो रहा सर, उस स्पीड से मैं नहीं जा रहा सर, मेरे जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड ही है सर, इसलिए मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स स्टिल वैलिड है सर, बिकॉज हम उतना अभी नहीं जा रहे सर। समझ में आया सर? समझ में आया सर? स्टिल वी आर नॉट गोइंग एट दैट स्पीड। अगर वो स्पीड से जाएंगे, क्या पता कल आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे न्यूटन को भूल जाके दे मे बी स्टडीइंग आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स, हु नोस। वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर? टिल नाउ इज एवरीथिंग क्लियर सर? वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल। आराम से अब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, विल बी डीलिंग ओनली विद एक्सटर्नल फोर्सेस, नो इंटरनल इफेक्ट्स। सो इफ आई अप्लाई फोर्स, व्हाट इज हैपनिंग? अब देखो सर, फोर्स की तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। डियर स्टूडेंट्स, basically our physical quantities are categorized into scalar, vector. एक्चुअली मैं राइट शब्द यूज करूंगा टेंसर, आपको सॉन्ग में पढ़ाया था, ध्यान से सुनो सर। स्केलार शब्द देखो सर, स्केल मतलब एक स्केल से क्या करते हैं आप? मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? कुछ वैल्यू, क्वांटिटी। देयर आर सम क्वांटिटीज वेयर यू नीड ओनली वैल्यू, दैट इज एनफ। फॉर एग्जांपल मास 30 ग्राम,
माउस है 27 ग्राम, ये रिमोट है 76 ग्राम। वेरी गुड। और कुछ चाहिए सर? डू यू नीड एनीथिंग मोर? डू यू नीड एनीथिंग मोर? एनफ। Such quantities where you need just magnitude, just a value, we call them as scalar quantities. बहुत ही अच्छा है सर। मास, लेंथ, टाइम। अब इसका डेफिनेशन मैं कैसे दूंगा सर आपको? You can only feel mass 30 ग्राम, मतलब amount of matter whatever is present it is 30, मतलब some correlate करेंगे 30। लेंथ है सर, I said this length is maybe some 2.54, 1 inch is 2.54 centimeter, so maybe 12-13 centimeter है। very good, just you will get an idea if it is 10 centimeter, oh this much, but अब मैं definition क्या दे सकता हूँ सर उसको? just you have to feel it। time क्या है? 830 बस। so just magnitude is enough। अब देखो सर, अब देखो, there are some things apart from value we need other things also। for example, बहुत carefully देखना, before we go to this let me define force। अब आप बताइए व्हाट इज अ फोर्स? आपको क्या समझ में आता है सर फोर्स के बारे में? एनीवन, आप बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ओह देखो, लेंथ बोल रहा हूं, मैं लेंथ बोल रहा हूं, लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं लेंथ बोल रहा हूं। आई सेड लेंथ। बचपन में दिव्यांशु लेंथ बोल रहा हूं सर, आई सेड लेंथ। तो कभी आप लेंथ को आप 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव ऐसा बोले, इसका लेंथ है, आप बोलो क्या बोलेंगे? इसका लेंथ है, ऐसा है 15 सेंटीमीटर, ऐसा है 15, ऐसा है 15, ऐसा है 15, ऐसा है 15, समझ गया ना? which is responsible for causing, आप बताइए, something external act upon which may provide motion or okay push or pull, magnitude, point of application sir। देखो सर बहुत सिंपल सी बात है सर, छोटे छोटे चीजें इंटरव्यूज में बहुत मैटर करते हैं। फोर्स इज, इट इज द एक्शन ऑफ, वेट अब बस करो, ऑफ वन बॉडी ऑन अदर बॉडी, यहां तक तो ठीक, विच यहां पे whenever I'm talking bodies, I'm talking about rigid bodies। See the definition, action of one body on other body which tends to change। sir why did you underline the word tends to change? ध्यान से सुनो, देखो एक बार, this is one body, this is another body। देखो, for what is force? it is the action, ये एक ऐसा एक्शन है, उस एक्शन के कारण बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा। बट यू हैव नॉट कॉट द वर्ड टेंस। मैं ये कभी नहीं बोला कि फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहा है, इट टेंड्स टू चेंज, मतलब इट हैज द कैपेसिटी, मतलब चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, लुक एट केयरफुली, लुक एट आई हैव अप्लाइड अ फोर्स, इज इट मूविंग? इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, आई हैव अप्लाइड अ फोर्स, इज इट मूविंग? इज इट मूविंग? इज इट मूविंग? नो। बट यही फोर्स अगर एक हल्के से बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो विल इट चेंज? यस। मतलब फोर्स तो सेम है, मान लो फोर्स इज 1 न्यूटन on this body, but that same force is causing the motion on this, but it is not causing the motion, it has the capacity, tends to change, कर सकता है। अगर बॉडी मोशन में है, देखो फोर्स का खासियत है, now there is a force, it's moving, yes, is it changing the state? Yes, it was at rest, now it is changing the state, this it is the action which is changing, but earlier it's not changing, but it has the tendency मतलब क्या है? कर सकता यहां का मतलब। now look at, already it is moving, now I apply, there is a possibility of bringing this body to rest, now it is moving, I apply light force, मतलब ब्रेक मार रहा हूं तो क्या हुआ सर? स्लो डाउन हो सकता है, मतलब it is tending to change the state of the body। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता, अगर मोशन में है तो और ज्यादा मोशन में ला सकता। if there is a force of 20, if I apply 50 it will move faster, if there is a force of 20, if I apply 20 it will come to rest। so have you understood sir? force is that it is the action of one body on other which tends, ये वर्ड टेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सर, अब देखो मेरे पास इतना बड़ा एक 200 किलो का एक ब्लॉक है, सुनो केयरफुली, आई हैव अ ब्लॉक ऑफ 200 kg, नाउ आई हैव अप्लाइड अ फोर्स, इज इट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी? इज इट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी? नो। बट वो फोर्स को है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, अगर उसी को मैं और ज्यादा अप्लाई करूंगा तो इट विल चेंज। तो ये मत बोलना कि हमेशा फोर्स चेंज कर रहा है, नो, इट हैज अ टेंडेंसी। यस, नीतीश ने बोला लाइक वॉल, यस लाइक वॉल, have applied, but it's not moving, it has the capacity to move, और थोड़ा ज्यादा अप्लाई करेंगे तो मूव हो सकता है। तो hope you have understood what is force। it is the action of one body on the other
which tends to बोलो आप, ये मत बोला which changes the state of the body, ये गलत है सर, ये गलत है सर। अगर आप बोलेंगे which changes the state, no, you have to use the word tends to. Is it changing हमेशा? No sir, no sir. अगर देखो बॉडी एक फोर्स 20 से अप्लाई किया वो मूव हो रहा है, अगर मैं 60 अप्लाई कर रहा हूं तो और तेज मूव होगा या नहीं होगा? सो मोशन है तो और मोशन हो रहा है, मतलब which tends to change the state of the body, बॉडी का स्टेट को चेंज करने का कैपेसिटी है। अब आप देखो सर, देखो सर, प्लीज लुक एट केयरफुली, प्लीज लुक एट केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, आराम से देखना, बहुत केयरफुली देखना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे सर यहां पे। हैव यू अंडरस्टूड फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? इट इज द एक्शन ऑफ one body on the other which tends to change the state of the body. Very good. No, सुनो सर, अब देखो, हाँ देखो सर, अरे ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज। अगर मैं यहां पे अप्लाई किया, is the effect of this and the effect of this, is it same or different? Let us assume this to be F1, let us assume this to be F2. Is it same? Is it same? Is it same? Definitely it is not same. Definitely it is not same. In this the effect is the downward motion, in this the effect is if it is fixed it cannot move. तो क्या इंपॉर्टेंट है सर यहां पे बोलो? एक्शन इज डिफरेंट, द इफेक्ट इज डिफरेंट, तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है मैटर कर रहा है। तो सिंपली आप 50 न्यूटन बोलने से मीनिंग नहीं है सर। देखो 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 क्यों नहीं? फॉर एग्जांपल if I apply 50 like this, listen sir, if I apply 50 like this, there is a different effect. And if the same 50 is applied like this, if same 50 is applied like this, the effect is different. Yes or no? But the effect is different. तो क्या जरूरी है सर यहाँ पे? Direction is important. Very good sir, great. So therefore our force is a vector quantity. So what is vector? Apart from magnitude it has a direction also. Apart from magnitude it has a direction also. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, अगर किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन है क्या वो वेक्टर होगा? देखो सर, आपसे नहीं पूछा सर, आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल, आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, फोर्स हैज डायरेक्शन। नाउ फॉर एग्जांपल, बहुत केयरफुली देखो, बहुत केयरफुली देखो, देयर इज अ पाइप, इस पाइप से फ्लूइड जा रहा है, इस पाइप से फ्लूइड जा रहा है और यहां फ्लूइड ऐड हो रहा है। लेट दिस बी फर्स्ट पाइप, लेट दिस बी सेकंड पाइप, लेट दिस बी थर्ड पाइप। यहां से डिस्चार्ज आ रहा है, आप जानते हैं डिस्चार्ज क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कमिंग पर यूनिट टाइम। सो द डिस्चार्ज इज, लेट अस से इट इज 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, यहां पर 20 लीटर पर सेकंड, यहां पे डिस्चार्ज है, लेट अस से इट इज 30 लीटर पर सेकंड। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज हियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज हियर? समवन से 50। हाउ सर? हाउ सर? यस, यहां का जो वॉल्यूम आ रहा है, यहां का जो वॉल्यूम आ रहा है, तो टोटल अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहां पे कितना होगा? 50। क्या ये डिस्चार्ज को डायरेक्शन है सर? यस, इट हैज अ डायरेक्शन, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इसका डायरेक्शन है, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन। सिमिलरली करंट फ्लो हो रहा है I1, करंट फ्लो हो रहा है I2, करंट फ्लो हो रहा है I, व्हाट इज I? इट इज I1 प्लस I2। करंट का डायरेक्शन है, डिस्चार्ज का डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट वेक्टर्स। सर 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 ये क्या बता रहे हैं सर आप? अभी तो बोले जिसका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर, मैं ये नहीं बोला सर, ये नहीं, अभी कंप्लीट नहीं किया सर मैं। नियर क्वांटिटी हैविंग नियर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन होने पर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, इट हैज टू फॉलो सर्टेन वेक्टर लॉस। व्हाट आर वेक्टर लॉस? लाइक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, इट हैज टू सैटिस्फाई दैट। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे एक फोर्स 20 न्यूटन है, अगर यहां पे फोर्स 30 न्यूटन है, इट कैन नॉट बी 20 प्लस 30 50, दिस इज नॉट 20 प्लस 30 50, इट सैटिस्फाइज सम वेक्टर लॉस। और ये अब देखो सर, मैं बताता हूं सर, सुनो केयरफुली, सुनो सुनो सर, सुनो सुनो सर, केयरफुली सुनो, सुनो सर, बहुत केयरफुली सुनो। यहां से डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज जानते हैं ना, हाउ मच फ्लूइड इज फ्लोइंग। यहां पे डिस्चार्ज आ रहा है 50, यहां पे डिस्चार्ज आ रहा है 20, और यहां से दिस इज Q2 एंड यहां से Q है। बहुत केयरफुली देखना सर, इसको मैं ऐसे करूंगा सर, you tell me, is this discharge the final discharge depending on the angle between them? क्या ये दोनों के एंगल के बीच में डिपेंड हो रहा है सर? Is it depending on the angle between these two? No, no. But हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, if there is a force F1 like this, if there is a force F2 like this, the resultant of these two will be different. Let the angle be given. If there is a force like this, if there is a force like this, what is the angle? 90 degree. So इसका resultant, even though the magnitude is same, even though the magnitude of F1 F2 is same, as the angle is different, the resultant will be different. So please note down that
quantities having magnitude and direction, and apart from that which satisfy laws of vectors, we call them as vectors. So current is not a vector. Discharge, even though they have direction, they are not vectors because they do not depend, they do not follow the vector law. Simply algebraic summation hai ye. So I cannot say if the force is some 20, if the force is some 20, if the force is some 70, I cannot say it is 90. No, they follow, they depend on this angle. समझ में आया सर? प्लीज बताइए समझ में आया सर? My dear students, have you followed? So simply vector, magnitude, direction, scalar, no, only magnitude. A quantity which has a magnitude and direction and which also follows laws of vectors, they are categorized as vectors. Force, we'll be seeing all these things. Momentum, ये सब हम different quantities को देखेंगे. Vectors में आते हैं. Vectors में आते हैं. Are we clear, my dear students? Are we clear? अब आगे बढ़ते हैं सर. Wonderful students of India. Wonderful students of India. Hope you understood. अब देखो, अब थोड़ा basics of vectors जाना है सर. Sir, if I please, my sequence is like this. Because हमको सब पढ़ना है. क्या पढ़ना है सर? Civil services means everything. Subject देखना है सर मुझे. Direction cosines. 3-dimensional में कैसा represent करते हैं? What is the physical significance of dot product? What is the physical significance of cross product? What is the significance of directional cosines? ये सब बताऊंगा सर. लेकिन जहां चाहिए उसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं. आप करंट which quantity? फ्लो क्वांटिटी बोलो, क्या बोलते हैं? यस, अब देखो सर, आराम से सुनो. लुक एट केयरफुली. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. जनरली हम क्या करते हैं सर? सुनो, जनरली हम क्या करते हैं? देखो एक बार, फोर्स है तो जनरली उसको ऐसा लिखते हैं, बोल्ड, मतलब थोड़ा डार्क से, ये वेक्टर, और इसको ऐसे भी लिखते सर, वेक्टर क्वांटिटीज को. आइदर आई रिप्रेजेंट बोल्ड और ऐसे भी लिखते हैं. सो वेक्टर को हम वी रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस. व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है उसका डायरेक्शन, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, HEAD, इसको बोलते हैं, वी कॉल दिस एज हेड. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. सो AB वेक्टर है तो ये B, A से लेकर B. व्हेन आई राइट AB इट मींस A से लेकर B तक, A से लेकर B तक. दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन. समझ में आया सर? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. दिस इज रिप्रेजेंट. सुनो, AB का मतलब A कहां पे है सर? आई यूजलेस फेलोस. AB का मतलब A कहां पे है? टेल पे है. B कहां पे है? हेड पे है. समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अरे यार बोलो रे, बोलो सर. नाउ लुक एट केयरफुली. लेट्स गो टू, ओके कोई बात नहीं. सौरभ प्लीज टेक केयर, सौरभ प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर सौरभ, प्लीज गो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. अब देखो, लेट्स गो टू इक्वल वेक्टर्स. सर मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा. फिक्स्ड वेक्टर्स, स्लाइडिंग वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स, बिकॉज वेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है. वंस वी अंडरस्टैंड वेक्टर्स ना, आप बोलेंगे सर वेक्टर से ही पढ़ाओ पूरे क्वांटिटीज. जब मूवमेंट पढ़ाओगे ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सर आप वेक्टर में ही पढ़ाओ, बोलेंगे आप, कसम से बोल रहा हूं. जितना डर था उतना निकाल देंगे सर वेक्टर से. ओके ओके सर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर. ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल. लुक एट सर, इक्वल वेक्टर्स. व्हाट डू मीन द इक्वल वेक्टर्स? फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, एक वेक्टर है, सुनो केयरफुली, ये वेक्टर है. सुनो सर, इसको हमारे पास तो हथियार है. ये कौन से वेक्टर्स है सर? ये सारे इक्वल वेक्टर, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन. उसका वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. फॉर एग्जांपल, इधर देखना रे, इधर देखना रे, इधर देखना रे. अरे इसको थोड़ा ऐसा लेके, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? यस. क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? बोलो रे. यस. देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? सेम. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? सेम. फॉर एग्जांपल, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा. सो आर दे इक्वल वेक्टर्स? यस सर, दे आर इक्वल वेक्टर्स. समझ में आया सभी को? इक्वल वेक्टर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन. नो प्रॉब्लम एट ऑल. वंडरफुल सर. अब देखो, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा. सेम वेक्टर को थोड़ा रोटेट करो सर. देखो देखो देखो, सेम वेक्टर को रोटेट करो. कैन आई कॉल दीस टू एज इक्वल वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड इज सेम सर, मैग्नीट्यूड इज सेम. अरे यार, वेक्टर में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डायरेक्शन इज डिफरेंट. दिस रोटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर will not change the magnitude, but it will change the direction. Therefore, they are not equal vectors. Hope you have understood. 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 Now, what is a negative vector? देखो देखो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है. नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का इधर देखो, एक वेक्टर ये है, इधर देखो ये वेक्टर ये है. आई वांट माइनस ए, कुछ नहीं है. इसी को आप इधर देखो, देखो प्लीज लुक एट, इसी को ऐसा करो, एंड दिस इज आवर माइनस ए, नेगेटिव. ये वेक्टर क्या है? इसको बी लिखूंगा मैं, बी, इसको बी लिखूंगा, लेकिन ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसका मतलब 180 डिग्री दोनों में. समझ में आया सर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा सर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स. मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर, यहां तक सभी को समझ में आया सर? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स. एक देखो,
देयर इज वन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, देखो एक बार, we'll be studying in machine design bolted joints, riveted joints under eccentric loading. So under eccentric loading इधर देखो बहुत केयरफुली देखो सर, अब पता चलेगा आपको ये बंदा कैसे पढ़ाने वाला है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, देयर इज अ रिवेट, मान लो, ध्यान से सुनो सर, लेट अस assume that अब देखो सर, प्लीज लिसन सर, हम ये ऐसा पढ़ेंगे सर, कहां पे पढ़ेंगे, वेयर वी स्टडी दिस, वी स्टडी इन रिवेटेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स। एमडी नहीं है समझ में, देखो अब देखो 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 प्लीज, आई गिव यू द ब्यूटी, मतलब थोड़ा फील आएगा, देखो आपको। हम बात करेंगे सर, सुनो सुनो केयरफुली, प्राइमरी शियर, सेकेंडरी शियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, प्राइमरी शियर, सेकेंडरी शियर वो सब भूल जाओ। देयर एक्चुअली व्हाट वी राइट, यू नो, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहला चीज आपको समझना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो यहां पे मैं थोड़ा ऐसे करूंगा सर, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करूंगा, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है। अब देखो डाउट आता है सभी को, सर क्या ये एंगल है, वेक्टर एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर है, क्या ये एंगल है, डाउट आता है सर। देखो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कुछ मत करना सर, कुछ मत करना। सो एक सेकंड को, एक सेकंड को, कुछ मत करना। अगर अब मैं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा, इधर देखो, लुक एट, कंफ्यूज करूंगा, बहुत ही कंफ्यूज करूंगा। एक ऐसा है और एक ऐसा है, लुक एट, से दिस इज वेक्टर ए and this is vector b and this is the direction. Let this angle be some 130 degree. Now the question is, what is the angle between vectors? बहुत इंपॉर्टेंट है, चुपचाप बैठो, मैं आपको एक लॉजिक दूंगा, चुपचाप बैठो। मीटिंग पॉइंट कहां है सर, दोनों वेक्टर्स कहां मीट कर रहे हैं सर, वेयर आर दीस टू वेक्टर्स मीटिंग एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट से you draw vectors in from the intersecting point, you draw vectors in such a manner that they move away from the point, that they move away from the point। इधर देखो, देखो बट इधर देखो, इट इज कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे टू द पॉइंट। अब यहां से इधर देखो, यहां से कुछ नहीं है, सेम लाइन ये होगा सर, समझ में आएगा ये। अब ये डायरेक्शन देखो, यस। अब बताओ सर, इस पॉइंट से इज इट मूविंग अवे, यस। अरे सेम ही तो वेक्टर है, कैन आई कॉल दिस इज सेम, यस। व्हाट डू मीन इक्वल वेक्टर्स, ये तो बी है, सेम लेंथ ड्रॉ करो, सेम लेंथ, आउटवर्ड आउटवर्ड, यस। अब देखो from this point is it moving away, yes, from this point is it moving away, this is the angle between vectors। अब आप बताइए what is the angle between vectors, and ये total angle तो 180 होगा, आपको तो जानते this is 180, 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 तो ये already 130 है, तो ये कितना होगा सर, it will be 50। समझ में आया सर, इस पॉइंट से it should move outward, it should move outward। समझ में आया सभी को, नहीं आया सर, नहीं आया सर, प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। देखो देखो, प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, देयर इज वन वेक्टर लाइक दिस, एंड सुनो सर, सुनो सुनो, देयर इज वन वेक्टर लाइक दिस एंड देयर इज अनदर वेक्टर लाइक दिस, एंड प्लीज लुक एट, देयर इज, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, कुछ नहीं है सर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आउटवर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट से वेक्टर आउटवर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट से वेक्टर बाहर जा रहा है, इंटरसेक्शन से बाहर, intersection से बाहर, intersection से बाहर, and that angle, intersection से outward, intersection से outward, that angle, this is my angle between vectors। नहीं आया समझ में, नहीं आया सर समझ में, प्लीज बताइए is it clear, प्लीज बताइए is it clear। So now there should not be any problem because I am taking care of different subjects because machine design SOM सब ले लेंगे हम, इसलिए everything is included here। is it okay? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, there is one vector, देखो there is one vector, there is another vector, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। This angle is 30 degree. This is vector A and this is vector B. What is the angle between A and minus B? What is the angle? No, Tanuj, वही तो है, वही तो है, वही तो है। इसीलिए जल्दबाजी is very dangerous. What is the angle between A and minus B? Minus B चाहिए, तो इसी को आप minus B चाहिए, listen right, minus B चाहिए, तो minus B क्या होगा? Exactly इसका opposite होगा। This is our minus B। आपको किन दोनों के बीच में चाहिए, a and minus b, a and minus b। I don't want this, तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। I don't want this, I don't want a and b, I want a and minus b, I want a and minus b, I want a and minus b, a से outward, intersecting outward, this is the angle। तो क्या होगा, ये तो 180 है, ये तो 180 है, 30 निकाल दो, so it is 150। शायद आपको समझ में आया होगा। Is it clear my dear students? Is it clear? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?
नहीं है सर। till now is there any problem? till now is there any problem? No. अब कुछ आगे जाएंगे सर। let's move to now you should not commit mistakes. You should not ask me question in machine design, sir what is the angle between these two? कुछ नहीं, intersecting point से vectors outward, intersecting point से vectors outward, खत्म। अब देखो इधर देखो सर, इधर देखो intersecting point से बाहर बाहर, yes this is the angle, correct? intersecting point से ये अंदर आ रहा है, no no, तो ये ऐसा होना चाहिए। intersecting point से ऐसा, intersecting point ऐसा, so this is the angle. hope you have understood now, क्योंकि हम वहां पे पढ़ेंगे सर which bolt is critically loaded. तो when this force and this force, when this force and this force is same, then which one will decide the angle? look at f1 square plus f2 square plus 2f1, ये सब डिराइव करूंगा सर cos थीटा। तो जब f1 f2 सारे बोल्ट्स में सेम है, तो which one will decide cos थीटा? तो angle will decide. if you do not know how to find the angle, then you'll be in trouble. see the application, simple application कैसा आया सर? तो ये लोगों को मैंने पढ़ाऊंगा सर, I'll not teach them because they are not understanding. I'll go sir. समझ में आया नहीं रे, वाह 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 वाह। 20 दिन से क्लास नहीं ले रहा हूं सर, मैं थोड़ा फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है मुझे। वंडरफुल सर, वंडरफुल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ना ना, आज फील हुआ, फील अभी होगा, अभी होगा ना, अभी होगा रे। मैं कुछ और बताऊंगा आपको। दिस इज एक्स एक्सिस। वेट 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 वेट, अच्छा करेंगे सर, सब्जेक्ट को बहुत ही धमाकेदार करेंगे सर। मजा आएगा। अरे कुछ अलग पूछ रहा हूं सर। हाँ, सर्वजीत भाई का डीपी देखिए। ओरे ये एक नमूने हो गए सर्वजीत, यार इतना प्यार मत करो। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, चुपचाप बैठो सर, चुपचाप बैठो सर। फाइंड द एंगल बिटवीन vector A and vector B, vector B and vector C, vector A and vector C. Find the angle between vector and B. कुछ मत करना सर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो रे, देखो देखो, प्लीज सुनो सुनो, चुपचाप बैठो। देखो प्लीज प्लीज सुनो, वेक्टर A with respect to x-axis, vector B with respect to x-axis, vector C with respect to x-axis दिया। Listen sir, he is asking what is the angle between A, B and, देखो A, B के बीच में, सुनो सुनो सुनो, कुछ मत करना। A, इधर देखो, ले आके एक्स एक्सिस पे रखना, देखो 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 देखो, एक्स एक्सिस पे रख दिए, एक्स एक्सिस पे रख दिए। भावना हैज फेल्ट, वो फीलिंग जरूरी है सर। अगर फील नहीं होंगे तो लाइफ भी ड्राई होगा सर। ड्राई मत कर लेना लाइफ को, फील। देखो इधर देखना, ये होगा। अब ये भी, ए बी देखो, फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आउटवर्ड, फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग आउटवर्ड, तो ए एंड बी के बीच में एंगल क्या है सर? एनीवन, इट इज 60 डिग्री। समझ गए? 60 डिग्री। कोई बात नहीं सर, अब इसको मैं कैसे डिलीट करूंगा सर? बी एंड सी, ओहो, बी एंड सी, इधर देखो, बी एंड सी लाओ, देखो नहीं, लाओ। अरे तो कुछ करेंगे गड़बड़, कुछ करेंगे रे। कुछ आइडिया आ रहा है सर सभी को? देखो प्लीज, ये 30 है, दिस इज 30 एंड दिस इज 45। तो फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, तो ये 30 या 45 है, ये 30 है, तो व्हाट इज दिस एंगल? 15। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है, सो देखो, सो देयरफॉर दिस इज हाउ मच? 45 में नहीं आ रहा सर समझ में, 45 माइनस 30 इट इज 15। बी एंड सी के बीच में कितना आ रहा है सर? 15। समझ गए? सिमिलरली ए एंड सी करेंगे, ए ऐसा है, C ऐसा है, देखो C A कितना है? 30 and C is 45. So from the intersecting point, A is like this, C is like this. Intersecting point से दूर जा रहा है, what is the angle? 75. So are we clear? Up now I feel that there is no problem with, there is no problem with, there is no problem with angles. Is it clear? Clear sir? अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। So now there is no problem with angle between vectors. कोई problem नहीं है। Now look at carefully, look at carefully sir. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं सर, आराम से सुनो, आराम से सुनो, केयरफुली सुनो। assume that, अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, till now there is no problem, बेसिक से चल रहा है सर। हम लाइक वेक्टर्स का एंगल होगा, अब वेक्टर का एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो आजाद भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे कहां घुमा रहा हूं सर?
यहां पे वेक्टर में कहां देखो, यहां पे तो प्लेन आइदर इट इज गोइंग आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड, बस आउटवर्ड का एंगल ले लो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बता रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बता रहा हूं, ठीक है। फिजिकल मीनिंग का मतलब टू वेक्टर्स आर inclined at an angle, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग एक बार बताता हूं सर। someone asked me sir इसका फिजिकल मीनिंग कुछ बताइए। फॉर एग्जांपल there is a member, look at carefully on this member, dear students, on this member I have applied a force like this and I have applied another force like this. There is an object, on this object I have applied a force like this, I have applied a force like this. So these two forces are acting at an angle theta, that is the meaning, physical meaning। मतलब एक object पे एक force ऐसा, एक force ऐसा, तो this is the angle between them। समझ में आ गया? That is the angle between two vectors, is it okay? Yes। अब आगे बढ़ते हैं सर। Now we'll proceed। इसका पूरा प्रैक्टिकली दे देंगे हम। Why do you worry? Now have a look at this। Very simple sir। वेक्टर का एडिशन चाहिए। I want the addition of vectors। बहुत सिंपल। First we'll go to triangle law of वेक्टर एडिशन। देखो ध्यान से सुनो। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इधर देखना सर। दिस इज वेक्टर बी सपोज एंड दिस इज वेक्टर ए। अब दोनों को ऐड करना है। Is it okay? Is it okay? Is it okay? अब देखते हैं सर। प्लीज शांति से बेटा, कुछ मत करना सर। वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? प्लीज लुक एट ए प्लस बी। ए को क्या ऐड करना है? ए को क्या ऐड करना है? समथिंग लाइक 3 + 5। 3 को क्या ऐड करना है? 3 को क्या ऐड करना है? प्लीज देयर इज अ मीनिंग सर। जब भी किसी का डायरेक्शन होता है तो कौन सा फर्स्ट ले रहा है, कौन सा सेकंड ले रहा है, ये मैटर करता है। समटाइम्स सेम आएगा तो ठीक है, लेकिन don't think that every time you are getting the same। so when something has a direction, उसी डायरेक्शन से चलना है आपको। what does 3 + 5 mean? हम 3 ऑलरेडी था, उसको क्या ऐड कर रहे हैं? उसको 5 ऐड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी था, उसको क्या ऐड कर रहे हैं? b को ऐड कर रहे हैं। और what is b + a? इसका मतलब है ऑलरेडी 5 था, 5 को हम 3 ऐड कर रहे हैं। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो फॉर्चुनेटली हमें सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन प्लीज ऑब्जर्व हियर दैट डायरेक्शन किसी का भी होता है ना, वो डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। Is it okay, sir? अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। अब देखो इसके थोड़ा डुप्लीकेट करेंगे सर। ए को क्या ऐड कर रहे हैं सर आप? ए को क्या ऐड कर रहे हैं सर आप बताइए? ए को बी ऐड कर रहे हैं। इधर देखो समझ गए ना? समझ गए ना? तो क्या करना है सर? ए का जो एंड है उसको बी ऐड करें, मतलब हेड ऑफ दिस वेक्टर शुड बी जॉइन विद टेल ऑफ द एडिंग वेक्टर। अब ये क्या देगा सर आपको? ये क्या देगा सर? ए प्लस बी देगा या नहीं देगा? अब ये क्या देगा सर? इट विल गिव मी ए प्लस बी। अब मुझे चाहिए बी प्लस ए। अब देखो सर, नाउ आई वांट बी प्लस ए। तो क्या करेंगे? बी का जो एंड है, समझ गए बी ए, इज इट ओके? अब देखो ये समझ गए? नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से सर, कोई टेंशन मत लेना। माय ट्रायंगल लॉ सेज, लुक एट केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट इट शुड बी द क्लोजिंग साइड। ये दोनों का रिजल्टेंट इट शुड बी क्लोजिंग साइड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, समझ में नहीं आया। बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। चुपचाप बैठो सर, बहुत ही अच्छी बात है, चुपचाप बैठो। सर ये सब मैं क्यों कर रहा हूं सर? देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर आर, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली वेक्टर में देता है तो यू विल बी इन ट्रबल। सिंपल हल्के से क्वेश्चंस वी कैन डू, बट थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये मुझे बताओ, ये क्या दे रहा है? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज दिस गिविंग? दिस इज गिविंग मी टू ए वी हैव एडेड बी, तो ये क्या देगा? a प्लस बी। अब ये क्या देगा सर? b को हम क्या ऐड किए? b प्लस ए। इज इट क्लियर? अब देखो एक काम करो सर, टेंशन मत लेना, एक काम करो, let this angle be some theta। Can anyone tell what is the angle between A and B? Anyone in the class? What is the angle between A and B? इधर देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर, सो ये ही होगा थीटा। कैन आई से थीटा? समवन सेड 180 माइनस थीटा। क्या करो सर, इतना साफ पढ़ाने के बाद? इधर देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट के तरफ आ रहा है, पॉइंट से दूर जाना है, और ये तो ऑलरेडी पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये एंगल क्या होगा सर? नहीं है सर? सर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? प्लीज बताइए। आर यू नॉट इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? आ रहा है या नहीं है? अरे यार, ये कैन आई कॉल दिस एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट?
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर जाना है, इधर देखो, इधर से दूर मतलब ऐसा जा रहा है, तो ये लाइन चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो दूर जाने वाला लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर जाने वाला लाइन, वो दोनों के बीच का एंगल थीटा। वेरी गुड। नाउ can I say A is purely in the horizontal direction? Can I say A is purely in the horizontal direction? Can I say A is purely in the horizontal direction? Yes. अब आप ये बताइए, what is this? ये B का ऑपोजिट है, तो can I say this as B sin theta? Can I say this as B sin theta? Yes. और ये क्या है सर? Anyone? B का cos theta. At least ये तो पता है ना आपको, at least ये तो पता है ना। अब देखो, now you tell me what is the total horizontal component? Total horizontal, ये तो purely horizontal है और ये horizontal है। ध्यान से सुनो सर, what is the total horizontal? ये horizontal है, ये ऑलरेडी इसका horizontal है, सुनो ये horizontal, so total horizontal क्या होगा सर बताइए? Anyone in the class? Total horizontal ये और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? यस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, I can easily add. So please observe clearly, whenever two vectors are in the same direction, algebraic addition or vector addition both are same. कुछ सेंस हुआ सर? Whenever both vectors are in the same direction, अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो whether you add algebraically or vectorially, they are same. But if they are not at same angle, not in the same direction, now you have to take components of that. ये समझ में आया सर? ये वेक्टर रूल है, ये वेक्टर रूल है, शायद आपको समझ में आया होगा। Is it clear? Now look at my dear students. Now I will go for this total length. What is this total length? ये तो A है, ये तो B cos theta, और ये होगा। अब देखो, मुझे बताओ सर, when I resolve this, इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा, 100 रुपीस का चेंज लिए सर, when you take 100 रुपीस चेंज, you'll be having change only. For example, 60 रुपीस का नोट, 40 रुपीस का नोट, तो आप बोलेंगे 60 40 कहां है? हम लाते हैं सर, मेरी मर्जी। So when you take change for 100 रुपीस, I have 60, I have 40. आपके पास 100 भी होगा, 60 40 भी होगा क्या? नहीं ना। When you resolve it होगा, when you take change for 100 रुपीस, 100 तो देना पड़ेगा, you have to give 100. So therefore ये तो गया, इसका कंपोनेंट ये आ गया और इसका कंपोनेंट ये आ गया। टोटल हॉरिजॉन्टल ये हुआ, टोटल वर्टिकल ये हुआ। अब आप बताइए सर, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, अब ये बताओ ये क्या होगा? कैन आई से दैट दिस इज द रिजल्टेंट? बोलो रे, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा सर? a + b, इसका और इसका वर्टिकल ये होगा। नहीं है ऐसा समझ में, नहीं है ऐसा समझ में, एक्चुअली आया नहीं है सर। सो देखो, बट व्हाट इज दिस? आप बताइए व्हाट इज दिस? एक्चुअली मैं इसको ही रिजॉल्व किया था, कोई इसको ही रिजॉल्व किया था। किसको रिजॉल्व किए थे? आई हैव रिजॉल्व दिस इनटू हॉरिजॉन्टल, आई हैव रिजॉल्व दिस इनटू वर्टिकल। मतलब ध्यान से सुनो, listen sir, listen carefully, listen carefully, wonderful students of India. ये किसका रिजल्टेंट है सर? दिस इज वेक्टर बी। ये क्या है सर? ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, और ये a + b आया नहीं है, और ये a + b आया नहीं है, तो क्या हुआ सर? हाँ क्या हुआ सर? सर सर एरो का साइन एंड होगा, क्या एंड होगा सर? ये दोनों का रिजल्टेंट, इसका मतलब ट्रायंगल लॉ क्या बोल रहा है? देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोल रहा है सर, इधर देखो, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ सेइंग? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय टेकन इन ऑर्डर? ये एक ट्रायंगल ऑर्डर में, ये एक ट्रायंगल, और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये क्या हुआ रे, क्या हुआ? अच्छा मैं, अरे यार देखो देखो, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा ये बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको शो कर, अच्छा ये बोल रहा है, चलो ठीक है। वो बोल रहा है सर एरो शुड बी ऑन इट। अरे ठीक है, आपको क्या कहना, व्हेन आई एम ड्राइंग लाइक दिस, एक वेरी गुड, जब मैं ये ड्रा कर रहा था ये एक्चुअली नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसको ज्वाइन करते समय देखो, अब इसको ज्वाइन करते समय देखो, ये अब ज्वाइन करते समय देखो देखो, अब ज्वाइन करते समय, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर देखो, ज्वाइन करते समय ये सही नहीं दिख रहा था, समझ गए? इसीलिए मैं यहाँ पे शो किया। एरो तो यहीं पे है सर, एंड यहीं पे हो रहा है। प्लीज ये तो समझो सर, मेरे फीलिंग भावनाओं को समझो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। होप यू अंडरस्टूड सर, समझ गए ना? मैं गलत नहीं किया सर। सो ये अब इसका डायरेक्शन क्या है सर? इसका तो दिख रहा ही नहीं, इसीलिए मैं शो किया। एक्चुअली यहीं पे है सर ये, प्लीज सर समझो, भावनाओं को समझो, भावना जी भावनाओं को समझो। ओके नहीं है सर समझ में, तो यहां से एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकला सर। देखो अब इसको निकाल दिया तो दिख रहा, पहले नहीं दिख रहा था सर। तो क्या समझ में आया सर? व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? if two vectors are taken in the order and the third vector the closing side, देखो देखो एक बात देखो, ये ऐसा क्लोजिंग ऐसा, बट आपको कैसे आया सर? आपको कैसे आया सर? हाँ थोड़ा दिखने दिखने जैसा करो नीतीश, दिखे जैसा, व्हाट डू यू मीन बाय दिखे जैसा? इधर देखो ऐसा है, समझो, इट शुड बी विजिबल, समझ गए ना? इट शुड बी विजिबल। देखो सर क्या समझ में आया सर आपको? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? हमने ये देखा सर, इधर देखो, हमने ये देखा सर, इधर देखो, इसका इसका रिजल्टेंट क्या है सर? क्लोजिंग। ये सब अभी तो देखिए, जस्ट आई हैव प्रूव्ड। सो इसका इसका, if these two are the two continuous sides of a triangle, then
इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन इन दैट ऑर्डर, ऐसा एक ऐसा एक उल्टा, नो, ऑर्डर का मतलब वही चल रहा है, जैसा ये चल रहा है ऐसे ही चलना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, नहीं ऐसा समझ में, व्हाट डू यू मीन बाय टेकन इन ऑर्डर, ये ऐसा जा रहा है तो ये ऐसे जाना है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट सर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, एनीवन इन द क्लास, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, क्लोजिंग साइड, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, क्या ये सही है सर? मेरा रिजल्टेंट नहीं आया ऐसा, ऐसा नहीं आया, मेरा रिजल्टेंट मैं डिराइव किया ऐसा नहीं आया, तो मेरा रिजल्टेंट आया है ऐसा। This is the resultant of A and B. So कुछ मत करना. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is the closing side in opposite direction. क्या आप इसका रिजल्टेंट दिखा सकते हैं? इधर देखो, ऑर्डर देखो, ऑर्डर 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 ऑर्डर, ऐसा 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 ऐसा, बट रिजल्टेंट शुड बी द ऑपोजिट डायरेक्शन। कलर चेंज करेंगे सर, कलर चेंज करेंगे सर, आया नहीं है सर? Is it clear or not? Is it clear or not? So like this, closing should be in the opposite direction. तो यहां दिखा रहा हूं आपको मैं, प्लीज लिसन। एक्चुअली यहां पे नहीं है डायरेक्शन, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा, शायद समझ में आएगा। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन सर? क्या ये दोनों सेम है? डेफिनेटली अगर हम प्रूव करेंगे तो सेम आएगा, इसीलिए a plus b and b plus a is same, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ। इज इट ओके? अरे देखो ये दोनों सेम है या नहीं है? यस, इट इज b plus a। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसा प्रूव करके दिखाऊंगा सर? सेम ये वाला लाइन एंगल लेके मैं करूंगा। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो व्हाट इज मतलब हमारा फोर्स, यस सेम होगा। हमारा फोर्स क्या फॉलो कर रहा है सर? वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, अनलाइक योर करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट। तो अब ध्यान से सुनो, एक ब्यूटी दिखाऊंगा सर, बहुत केयरफुली देखो, बहुत सर यहां तक सभी को समझ में आया सर? टिल नाउ हैव यू फॉलोड सर? माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हैव यू फॉलोड सर? डियर स्टूडेंट्स, हैव यू फॉलोड सर? प्लीज बताइए, यस यस है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तनुज भाग गया देखो, तनुज भाग गया देखो, अब देखना सर, प्लीज लिसन सर, प्लीज लिसन माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया सर? अब देखो, वेरी गुड, ब्यूटीफुल बोलो रे, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल बोलो। तनुज भाग गया देखो, अब देखो देखो। अच्छा, राइटिंग नोट्स सुनो सुनो, कोई भी नोट्स अच्छा लिखेंगे ना, उनको मैं इनाम दूंगा, कसम से बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अच्छे नोट्स बनाओ, रोज के रोज बनाओ, बना के भेजो मुझे। सुनो अब देखो सर, लुक एट केयरफुली, ध्यान से सुनो। देयर इज अ फोर्स लाइक दिस, देयर इज अ फोर्स लाइक दिस। ये दोनों का, सुनो केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, करेक्ट? ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, मींस आई कैन से देयर इज अ नेट फोर्स। ये सब नेट फोर्स मतलब फॉर एग्जांपल ये कुछ है, ये F1 है, ये F2 है, ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ बचा है सर, कुछ बचा है। अगर अगर सुनो केयरफुली, दिस इज द रिजल्टेंट, प्लीज नोट ऑन दैट, एरो यहां पे ही लगाना है, मेरे फीलिंग को समझो, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर अगर तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो सर, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, मान लो थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर थर्ड फोर्स ऐसा आ गया तो क्या मतलब है सर? थर्ड फोर्स ऐसा आ गया, क्या मतलब है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थर्ड फोर्स ऐसा आ गया, अरे यार ये दोनों का रिजल्टेंट इज एक्चुअली, ये दोनों का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू इज लाइक दिस, the resultant of these two is like this, but there is a third force exactly same but in opposite direction। मतलब these two, ये दोनों का रिजल्टेंट, सुनो केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, समझ गए ना? ये दोनों का रिजल्टेंट ये येलो वाला है। अगर थर्ड फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है तो ये दोनों नलिफाई हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या हुआ? जीरो। इसका मतलब है ट्रायंगल ऑटोमेटिकली अगर ऐसा क्लोज हो रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स? ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, what is the net force? Zero, क्योंकि the resultant of these two will be, dear students, the resultant of these two will be like this with arrow like this, but these two, resultant of these two is like, अब ये दोनों नहीं रहेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट डालेंगे तो ये नहीं, ये दोनों नहीं रहेंगे। अरे ये दोनों का रिजल्टेंट ये व्हाइट वाला है तो ये दोनों को निकाल दो, अब ये दोनों नलिफाई हो रहे हैं तो नेट क्या होगा? जीरो। इट मींस whenever the triangle is automatically closed means my object is in equilibrium under the action of these three forces। अगर मेरा ट्रायंगल क्लोज नहीं हुआ तो ये दोनों का रिजल्टेंट, देखो देखो केयरफुली, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, सुनो केयरफुली, अगर ये क्लोज नहीं हुआ ऐसा ही है, मतलब ये दोनों का कुछ रिजल्टेंट बचा है। ऑटोमेटिकली अगर ये क्लोज हो रहा है, ऑटोमेटिकली देखो एरो देखो प्लीज, ये और ये का रिजल्टेंट ये है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज दिस, बट इफ देयर इज अ थर्ड फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, दिस टू गेट्स नलिफाइड। तो याद रखिएगा सर, इन सीक्वेंस, वही सीक्वेंस में अगर ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है तो रिजल्टेंट इज जीरो। ये कब जीरो होगा, क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। सो कॉन्सेप्ट आया सर? Dear students, is the concept clear? तो ऑटोमेटिकली जब देखो थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, प्लेनार, कोप्लेनार, ये सब देखेंगे। इज इट ओके सर? चलो लेकिन यहां से कोई दिक्कत नहीं सभी को, मैं आगे बढ़ूंगा सर। लेट मी प्रोसीड सर, लेट मी प्रोसीड, आई एम हैप्पी विद यू पीपल, लेट मी प्रोसीड।
तो ट्रायंगल लॉ का कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये बोल रहा है सर अगर सीक्वेंस, देखो देखो वन स्टूडेंट से, अगर सीक्वेंस में क्लोज नहीं हो रहा है, इतना ही बचा है, इसका मतलब है ये तीनों का कुछ रिजल्टेंट बचा है, मतलब देयर इज अ नेट फोर्स, देयर इज अ नेट फोर्स। यस द रिजल्ट, यस नीतीश हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, सर क्या रिजल्टेंट का मतलब है दोनों फोर्सेस का इफेक्ट? यस, व्हाट वी आर डूइंग इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस आई एम कन्वर्टिंग इनटू अ सिंगल फोर्स, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट। दोनों का इक्विवेलेंट, दैट इज रिजल्टेंट। इट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे? शब्द देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब बहुत सारे फोर्सेस को एक रिजल्टेंट की तरह कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस। लेटर ऑन वी गो फॉर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस व्हिच इज ऑपोजिट। एक फोर्स रहेगा, उसको हम स्प्लिट करेंगे, उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन। तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज द रीजन फॉर रेजोल्यूशन? इधर देखना सर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सभी बताऊंगा शशि बाबू, सभी बताऊंगा सर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सभी बताऊंगा सर, प्लीज। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस? मतलब many forces are converted into a single force which we call it as composition of forces. What do you mean by composition? That resultant force is composed of so many forces into a single force. So for example there are so many forces acting here. ध्यान से सुनो, there is a bolt here, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बोल्ट है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज लिसन, यहाँ पे एक बोल्ट है, जो भी है, एक फोर्स ऐसा लगा है, एक फोर्स ऐसा लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है। I'm converting all these into a single resultant. Let us say एक single resultant ऐसा गया, ये इस सबका composition ये है, मतलब this is composed of all these three. It is known as combining all into a single resultant. लेकिन now the question is how can I convert everything into a single? ये बहुत important है सर, ये हम कल देखेंगे how we are doing that. So have you understood the difference between composition and resolution? Composition का मतलब सारे forces को एक में convert कर रहा है, resolution का मतलब एक force है, there is one force, इस force को now I'm splitting like this, like this, इस फोर्स को ऐसा कर रहा है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन इज कन्वर्टिंग ऑल फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स, व्हेयरएज रेजोल्यूशन इज सिंगल फोर्स इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे हम बताएंगे। तो वन स्टूडेंट आस्क्ड मी क्वेश्चन, सर व्हाई वी आर डूइंग दिस? फॉर एग्जांपल सर, क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने टीम मेंबर्स है सर? क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने टीम मेंबर्स है सर? यस एग्जैक्टली 11 मेंबर्स। क्या टॉस डालने के लिए 11 लोग जा रहे हैं? क्या टॉस डालने के लिए 11 लोग जा रहे हैं? नो, सम रिप्रेजेंटेटिव एक ही, तो ये सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे लिए इजी होगा सर। तो प्लीज नोट ऑन दैट द रिजल्टेंट इज गिविंग द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ, रिजल्टेंट इज गिविंग द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ वेरियस फोर्सेस। कैसा वो इफेक्ट देगा हम बताएंगे आपको। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लाइफ बिकम्स वेरी इजी, life becomes very easy if I convert everything into single. अब ये 2 RA force, 2 RA force, F3 you come, F4 you come, F5 you come, हर मर्तबा I cannot tell ना, सबको एक में डाल दिया और एक कैप्टन बोल दिया, रिजल्टेंट बोल दिया, चलो। हमारे कैप्टन कौन है? हम तो फकीर है, झोला लेके चल पड़ेंगे, वैसा हम कोई नहीं हमारे कैप्टन, something like that, something like that. So therefore, have you understood sir? Have you understood sir? Have you understood composition and resolution? One student said, sir composition तो समझ में आया, because you are converting everything into single. So when I convert into a single force, life becomes easy. Yes or no sir? So when you are converting everything into single force, life becomes easy. So we have understood the composition. Sir, we have not understood the resolution. Good, good. Composition क्यों कर रहा है sir? To make our life simpler. कैसे? When we have so many forces, when I convert all these forces into a single force, and I'll see that the effect of that single force is same as the effect of single force is same as all. अरे यार, कभी नहीं पढ़े रे आप? Pipes in series, pipes in parallel, or resistances in series, resistances in parallel, same effect, equivalent resistance लेके problem solve नहीं किया sir. Life, will the life become easy? Yes, it will become easy. When I convert everything into a single one, will the life become easy? It will become easy. तो वही तो कर रहे हैं आप, पागल की तरह पूछ रहे हैं। सर ये तो समझ में आया सर, all into single, लेकिन single को break क्यों कर रहे हैं आप? So we have understood what exactly is composition and why this is done. We have understood, but why we are going for resolution? Good. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर, इधर देखो। एक फोर्स ऐसा लगाया, ऐसा लगा है, मान लो एक फोर्स ऐसा लगा है। अब सुनो केयरफुली, सुनो सर, डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। एक फोर्स ऐसा लगा है, से दिस एंगल इज सम थीटा। नाउ आई विल रिजॉल्व दिस इनटू 2। व्हाई आर वी रिजॉल्विंग? इंटरेस्ट में पूछेंगे, इंटरेस्ट में पूछेंगे सर रेजोल्यूशन इज नॉट डन। हाँ, वो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में जारी करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर एक ही फोर्स है उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं क्यों? अरे यार एक ही फोर्स है उसको भी रिजॉल्व क्यों कर रहा है? मैं बताता हूं, सुनो, इंटरव्यूज में पूछेंगे, इंटरव्यूज में पूछेंगे। इट्स नॉट फॉर फन वी आर डूइंग हियर। सो देखो, इट्स नॉट फॉर सिंपलीफिकेशन। इधर देखो, नाउ ऑब्जर्व हियर, आई हैव रिजॉल्व इसका एक मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका एक मान लो वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो इसका इफेक्ट क्या है, एक्चुअल में क्या इफेक्ट है, और इसका क्या है, कितना बेंड कर रहा है, टर्न करवा रहा है। सेम फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजल्ट किए, तो ये कितने फोर्स से
पुल करने का क्षमता है, इंडिविजुअली कितना पुल कर सकता है। ये टोटल फोर्स इज नॉट इन पुलिंग, ओनली द कंपोनेंट ऑफ दिस इज रिजल्टेड इन पुलिंग एंड दिस इज रिजल्टिंग इन मूवमेंट। तो थोड़े मूवमेंट में, थोड़े एक्शन फोर्स में, तो आउट ऑफ द टोटल फोर्स, फॉर एग्जांपल लेट द टोटल फोर्स बी 50, आउट ऑफ 50 ये 30 मान लो, ये 20 जो भी है, 20, तो ऐसा नहीं होता है, वेक्टर्स में सेम नहीं होता है। सो समझ गए, अगर ये 30 है, मान लो ये 60 है, जो भी है, तो मींस आउट ऑफ दिस दिस पोर्शन इज रिजल्टिंग इन पुलिंग एंड दिस इज रिजल्टिंग इन कॉजिंग बेंडिंग। तो इंडिविजुअल इफेक्ट जरूरी है। आउट ऑफ दिस 50 टोटल इज नॉट यूज्ड फॉर बेंडिंग, नहीं है ऐसा समझ में, टोटल इज नॉट यूज्ड फॉर बेंडिंग। यहाँ पे मूवमेंट ये टोटल 50 के कारण नहीं हो रहा सर, मूवमेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट है इसका, सो इंडिविजुअली देखना जरूरी है सर। दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व, फॉर एग्जांपल। और एक बात बताता हूं सर, सुनो केयरफुली, समझ में आया सर, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है सर सब्जेक्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल आई हैव केप्ट इट ऑन द ग्राउंड, अब देखो सुनो केयरफुली। तो अब ये बोलेगा a force is applied, a force is applied like this। इसको क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं सर, आउट ऑफ दिस हाउ मच इज गोइंग फॉर दिस, हाउ मच इज गोइंग फॉर दिस। सो ये डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, ये डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, तभी तो आइडिया आएगा ना। व्हेन यू रिजॉल्व देन ओनली यू गेट द आइडिया ना। दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व, दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व। प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया। यस, पुश पुल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए वी डू दिस। इंटरव्यूज में अगर पूछेंगे तो ये आंसर दे देना। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं रे? कैन बी से हाँ, देखो देखो मयंक ने पूछा सर इज द रेजोल्यूशन डन ओनली व्हेन द वेक्टर इज इंटरेंट। ऐसा नहीं है सर, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, मैं मयंक जी का आंसर दूंगा। इधर देखो सर, इधर देखो प्लीज सर, हर एक के लिए रीजन है सर। एक फोर्स है, एक फोर्स है। ये मत सोचना कि हमेशा वी आर रिजॉल्विंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, गलत। डोंट थिंक दैट वी आर रिजॉल्विंग ओनली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखो नाउ आई मे बी रिजॉल्विंग लाइक दिस, yes yes, or I may be resolving in my own direction। ये मत इधर देखो, अरे ये मत सोचना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, गलत गलत गलत। इट मे बी रिजॉल्व इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कैसे? फॉर एग्जांपल इसका कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन and what is the component of this in the perpendicular direction, or what is the component of this in this direction and what is the component of, for example इधर देखना। so क्यों ऐसा करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सुनो सुनो। there is a block, there is a block and I have applied a force something like this। look at carefully, now I want to see the effect of this force along the plane, along the plane and perpendicular to the plane। तो क्या हम इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किए? नहीं किए सर। आई हैव रिजॉल्व्ड दिस along and perpendicular to the plane, but this is my horizontal axis, so I have not resolved। so I can also resolve this force, देखो I can also resolve this force in this direction, in this direction। मतलब resolution can be आपके खुद के डायरेक्शन में होंगे, आपको जो चाहिए whatever you want in that direction, उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए I will be taking in that direction। don't think that resolution means only horizontal vertical, please remove from your mind that bad concept। resolution is x axis y axis, this is my x axis, this is my y axis। अब बोलो क्या ये horizontal vertical है? हम जिस डायरेक्शन में चाहिए उसमें, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आई वांट द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आई वांट द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो आई विल बी रिजॉल्विंग इन दिस डायरेक्शंस। सो रेजोल्यूशन कैन बी एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया है? अब देखो मैं पूरा समझ में आ गया ना? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं। वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, व्हाट अ ग्रेट स्टूडेंट्स आई एम विटनेसिंग। सो शुरुआत अच्छा हुआ सर, अच्छा हो रहा है सर सब्जेक्ट, खुश हो कि नहीं सर? कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कसम से बोल रहा ना, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे। सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क, मेरे अंदर का जो फीलिंग है एक बार गिफ्ट देके छोड़ूंगा सर। सुनो सर केयरफुली, बहुत केयरफुली देखो। अभी पैरेललोग्राम नहीं पढ़े सर? प्रिंसिपल ऑफ मैंक ने अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, क्यों परपेंडिकुलर है? क्यों परपेंडिकुलर होने से क्या होता है ना, cos थीटा sin थीटा मुझे कैलकुलेट करना इजी होता है, तो देयर बाय उसका इफेक्ट उस डायरेक्शन में सेम होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो मुश्किल होगा कैलकुलेशन के लिए, वही एक चीज है। इज इट ओके? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, व्हिच बॉडीज आर यू स्टडीइंग सर? व्हिच बॉडीज आर यू स्टडीइंग सर? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी बहुत ही अच्छा है। सुनो 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 सुनो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सर, सुनते जाना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं sir। certain concepts are very very important। I have an object,
अब देखो हर रोज तो 11:30 तक होगा, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? कोई नहीं। ध्यान से सुनो सर, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस? आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, लुक एट केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डेप्थ जरूरी है सर। 6 to 9 थोड़ा सुनो रे सब, आपके कन्वीनियंस से नहीं होगा सर, मेरे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स है, मेरा भी फैमिली है। आप ना, आपको बहुत वेराइटी स्टूडेंट्स है आप, मैं जा रहा हूँ सर, अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा सर, आई विल नॉट टीच यू पीपल। लिसन लिसन, रिकॉर्डेड मिलेगा ना रे, कैन आई गेट रिकॉर्डेड सेशन? ये सवाल नमूना ही पूछ रहा है, ये तो नमूना ही आते हैं इस क्लास में। सुनो सुनो, look at carefully, please my dear students, look at, you are seeing the effect of external forces, you are seeing the effect of external forces on rigid bodies. अगर 2 words if you are not taking care of, you are gone my dear friends. क्या 2 words? rigid, principle of transmission of forces। सुनो सुनो carefully, principle of transmission of forces, तो क्या पढ़े हम? rigid bodies और external forces। ये कौन सा फोर्स है सर? external force। let us say I have applied 50 न्यूटन का फोर्स और यहां पे भी 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब बताइए सर, व्हाट इज द एक्सटर्नल इफेक्ट? एक्सटर्नल इफेक्ट मतलब एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट इसमें इसमें क्या है? ओनली तनुज हैज गिवन आंसर, सेम है, सेम है। क्या होगा? मैं ऐसा खींच रहा हूं तो आगे जाएगा, और ऐसा पुश कर रहा हूं तो वो आगे जाएगा। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ सर? सुनो केयरफुली, अगर मैं क्या करूंगा, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली, अगर यहां अप्लाई करूंगा और बीच में और एक ले लेंगे सर, सुनो रे, सुनो सुनो, ये पूरा आ रहा है, चलो इतना ही ले लेंगे। सेम 50 न्यूटन। क्या हो रहा है सर बोलो? क्या हो रहा है सर बोलो? वेदर यू आर अप्लाइंग एट दिस पॉइंट, whether you are applying at this point, whether you are applying at this point, the effect is same। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। I am moving the force along the line of action of force। ध्यान से सुनो सर, I am not moving the force in some other direction। मैं इस फोर्स को देखो, ये फोर्स को मैं ऐसा इंक्लाइन करके नहीं जा, along the same line of action, तो इफेक्ट क्या मिल रहा है सर? Please note down that it is based on observations. There is no proof for this. It is based on observations. Certain things are based on observations and certain things can be derived। Great। इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा, सो ये फोर्स को इस लाइन पे कहीं पे भी मूव करना तो इफेक्ट क्या होगा सर? वेरेवर आई मूव दिस फोर्स अलोंग द लाइन, द इफेक्ट इज व्हाट? सेम सेम सेम। अंश ने पूछा इंटरनल, इट्स समथिंग दैट इज, मैं छोटा होल मार के उस पॉइंट से छोटा होल मार के वहां पे कुछ धागे से खींच रहा हूं मैं, ये भी एक्सटर्नली है सर। इसका मतलब है सर, ऑन अ रिजिड बॉडी, इस पॉइंट को कैच करना, ऑन अ रिजिड बॉडी when you move the force along the same line of action, the effect is same। इसका मतलब है सेम फोर्स ये लाइन पे ट्रांसमिट हो रहा है, सेम फोर्स इसी लाइन पे ट्रांसमिट हो रहा है। अगर यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, बट प्लीज नोट ऑन दैट द डायरेक्शन शुड बी अलोंग द लाइन, मतलब इसी लाइन पे मूव करना है, इसी लाइन पे मूव करना है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। बट ध्यान से सुनो, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एक्सटर्नल बिहेवियर, not internal behavior। We are interested only in external behavior, not internal behavior। So under the action of, so it's something like this, under the action of 50 Newton, under the action of 50 Newton, what is the external behavior? बोलो रे, under the action of 50 Newton, under the action of 50, मतलब along this line, if I move the force, the effect is same। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, ये कहां से ऑब्जर्व किया सर? और मिस्टेक कर रहे हैं सर आप। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड माय बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल किया, सर आई हैव अ डाउट, सर ये समझ में आया सर? तो मतलब क्या है, सेम फोर्स को अगर इसी लाइन पे मूव कर रहे हैं, सेम फोर्स को अगर इसी द सेम फोर्स व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, द इफेक्ट विल बी सेम।
So I'm not changing the magnitude, I'm not changing the direction, means the same force is transmitted, the effect will be same, effect will be same. ये कहां से आया सर? Observation से. इसका मतलब है whether you pull like this, whether some students say sir हमने बचपन में पढ़ा सर pulling is easy, pushing is tough. अरे यार वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है सर, वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है. जब आप पुल कर रहे हैं तो ये और ये क्या ये सेम है सर? ये और ये क्या सेम है सर? या ये दोनों सेम है सर? प्लीज नोट ऑन दैट, डोंट ब्रिंग दोस टू इनटू अकाउंट. सो आई सेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों अलग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे सर, ये हम बाद में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शायद आपको समझ में आया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल. एक सूटकेस को आप ऐसा ले जा रहे हैं, एक सूटकेस को आप ऐसा ले जा रहे हैं और एक सूटकेस को पुश कर रहे हैं. ये दोनों अलग चीजें हैं सर, ये दोनों अलग चीजें हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस along the same line. Is it clear? Stop. अब देखो सर, ध्यान से सुनो. अब देखो प्लीज. Clear dear. Have a look at this. One student has asked me a beautiful, yes exactly this. One student has asked me a beautiful question. मैं वो बोला, क्या बोला पता है? Sir, I have a doubt. Then I said, what is your doubt? He said, sir, देखो मैंने बोला सुनो carefully. Let this force be 50, let this force be 50, let this force be 50, let this force be 50. You are seeing what, sirs? You are seeing what? External. Suno carefully. What is the net external force here? Suno, let me divide this into two. What is the net external force here? Sir, कुछ नहीं बोले सर. ये फर्स्ट केस में what is the net external force? अरे 50 right side, 50 left side, तो net force is 0. What is the net external force? Anyone here? What is the net external force? ये right side है, ये left side है, तो ये 0 होगा. External के अनुसार दोनों सेम है ना? Yes or no, sir? Yes or no? External, are they same or not? Yes, they are same. Are the internal effects same? Are the external force is 0, are the internal effects same? अगर deformable body होता है, if it is a deformable body, my dear students, what will happen to its length? It will increase. After some time, you will see this body something like this. After some time, you will see something like this. And after some time, you will see something like this. Is the internal behavior same? Even though the external effect is same, the internal is not same. That's why, please, my dear students, whenever you are seeing the principle of transmission of force, don't go for internal effects. It's only external. And it is a deformable body. That's why principle of transmission के लिए rigid body जरूरी है, deformable में effect अलग-अलग है. तो इसीलिए कभी भी याद रखना, principle of transmission of force पढ़ेंगे जब external effect on a rigid body, internal हम enter ही नहीं होंगे. So definitely its internal behavior is different. Even though the net external force is 0, net force is 0, but the behavior is not same. ऐसे कंफ्यूज मत होना सर. सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स वो पूछेंगे, कैन आई अप्लाई टू डिफॉर्मेबल बॉडीज? नो सर, बी केयरफुल. ये ओनली एक्सटर्नल इफेक्ट देखना है तो ठीक है सर. क्लियर सर? ओनली एक्सटर्नल इफेक्ट एंड ऑन अ रिजिड बॉडी. नहीं है सर? समझ में आया सर सभी को? प्लीज बताइए, समझ में आया सर आपको? तो व्हेनेवर आई से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, अगर सेम लाइन पे फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है, इफेक्ट विल बी सेम ऑन अ रिजिड बॉडी and only external effect. External behavior same, internal अलग-अलग होगा सर. Even though the external forces are same, but the behavior is different. Even though the external effect is same, but the internal behavior is different. So be careful, my dear students. तो principle of transmission किसको अप्लाई करेंगे? रिजिड बॉडीज को and external forces ही डिस्कस करेंगे. मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो ऑलरेडी है जो रिजिड बॉडी, and already we are dealing with external forces. इंटरनल तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम principle of transmission of forces यहाँ पे मैकेनिक्स में कर लेंगे. क्लियर? समझ में आएगा? स्टॉप. यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू मी बेसिक्स अगर किसी के स्ट्रांग है तो आप उठेंगे सर. मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर ये मैकेनिक्स मेरा कर लेना, कल ये बेसिक से आप और इसको ऐड करेंगे और ऐड करके आप महान टीचर बनेंगे. मुझे पता है सर. आप प्लीज इस बैच से मुझे एक ना एक, आई वांट मल्टीपल स्टूडेंट्स. कल इंडिया के टॉप मैकेनिक्स टीचर्स आपको बनना है सर, कसम से. वो मेरे लिए गिफ्ट होगा. इस बैच से एक टॉप मैकेनिक्स के टीचर्स बनाए, लेकिन व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स आई एम गिविंग उसी से संतुष्ट मत होना, उससे और ऐड कर लेना और टॉप टीचर्स बनना और मेरे से मिलने एक बार आ जाना, या फिर मैं ही आप टॉप बनने के बाद आपका नाम सुन के मैं ही खुद आपके पास आ जाऊंगा. यस मिस्टर ऋतिक. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं सर. और एक बात है सर, अब यहाँ पे क्या है ना, इज इट ओके? मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर?
Shall I proceed? No. तो यहां तक हो गया, तो we have seen no problem, no problem. Shall I proceed? Okay. एक सेकंड सर, यहां से कहां जाएंगे रे, यहां से कहां जाएंगे रे, अब देखो yes Mr. Nitish, okay. चलो सर ये मत सोचना कि मैकेनिक्स का मतलब ओनली स्टैटिक्स, नो, डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे हम, एनएलएम तो पढ़ना ही है। ओके, वेरी गुड सर, ये शुरुआत हो गया सर, दिस इज आवर बिगिनिंग। बट बिफोर आई क्लोज, मैं छोटा सा क्या बोलते आइडिया दूंगा, सुनो केयरफुली, सुनो सर। आप जब फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ोगे ना, you start falling in love. There is a फोर व्हील, मतलब फोर व्हील्स है, रेल व्हील ड्राइव है। अगर रेल व्हील ड्राइव है तो हम रेल व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सर फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ऐसा जो बुक्स में है ये डाल के, ये सिर्फ ये नहीं छोड़ेंगे सर, सीरियसली ऐसा नहीं छोड़ेंगे सर। देयर इज अ कार, तो द इनपुट इज गिवन टू द रेल व्हील, सो द रेल व्हील को इनपुट दिया है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो रेल व्हील ड्राइव में फ्रंट व्हील का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मजा आएगा सर। ठीक है, तो आज बस इतना ही आज के लिए। तो क्योंकि ना बहुत दिन हुआ मैं क्लास नहीं लिया था सर, तो 3 घंटे का भी आदत नहीं हुआ, अब करेंगे, ठीक है ना? खुश हो कि नहीं? अच्छा सॉन्ग चाहिए, चलो एक सेकंड, आपके लिए सॉन्ग भी दूंगा, आपके लिए सॉन्ग भी दूंगा रे, एक सेकंड। देखो ये आ गया, प्रणाम गुरुदेव। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ बोलो सर बहुत ही अच्छा हुआ सर, आज की क्लास में मतलब सर आपने मतलब सिक्सर से शुरुआत कर दी सर, ओपनिंग। अच्छा थैंक यू सर एक सर वो पूछना था सर, जो सिलेबस में जो एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो अभी रिसेंटली न्यू एडेड टॉपिक्स है, स्क्रू जैक, बेल्ट एंड ड्राइव, तो वो मशीन डिजाइन में होगा कि यहाँ पर कवर होगा वो? देखो ऑलरेडी मशीन डिजाइन में मैं करवाया, लेकिन यहाँ पे करवाऊंगा, स्क्रू जैक तो करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? लिफ्टिंग, क्योंकि सर अपना ब्रेक्स क्लचेस तो एमडी में हो चुका है, लेकिन लिफ्टिंग मशीन्स एंड बेल्ट ड्राइव्स नहीं हुआ है। यहाँ पे होगा, ओके ओके सर, यहाँ पे करूंगा। हैप्पी, खुश हो? ओके सर, बहुत खुश है सर। चलो फिर कल मिलते हैं, ओके बाय 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 बाय। और कौन है? और तिरुपति राव, तिरुपति राव, राव तिरुपति। हाँ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పు నాయనా. సార్ నేను యూపీఎస్సీ ఆప్షన్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా సార్. నో ప్రాబ్లం. నో అంటే సిలబస్ సేమ్ ఉంటుందా, అంటే యూపీఎస్సీకి ఇంకా తక్కువ ఉంటుందా అని? ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తాయండి, ఓకే? సో అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, ఓకే? ఓకే సార్, అంటే సెగ్రిగేట్ ఎలా సార్ చేసేది? ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కొన్ని టాపిక్స్ ఏ ఉన్నాయి దాంట్లో. లేదు మీరు ఇవన్నీ చదవాల్సిందే, యు హావ్ టు స్టడీ ఆల్ దిస్, యు హావ్ టు స్టడీ ఆల్ దిస్, ఓకేనా? ఓకే సార్, దిస్ ఇస్ ఎనఫ్. ఎనఫ్, ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ओके वो करें सर, गाने के लिए बोले ना, और कोई है? और कोई है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बोल रहा है प्रिंसिपल ट्रांसमिशन जो है इस पे या मोशन में अप्लाई करें, किस में अप्लाई करें? स्टैटिक कंडीशंस में देखो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन का जो है ना, सो आप देखो, हेलो क्या है जी 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 लुक एट केयरफुली, उसका इफेक्ट एग्जैक्टली मोशन में भी सेम होगा, रेस्ट में भी सेम होगा, लेकिन पहले हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ओके? सर वही तो सोचा। हेलो हाँ सर, चलो कोई नहीं, गाना सुनना है? चलो आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे, ओके ना? चलो बाय बाय, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मैं शेयर किया था, कल शेयर करूंगा, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना, थैंक यू, बाय बाय। कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विल स्टार्ट, मतलब कॉन्सेप्ट्स देने के बाद क्वेश्चंस कर लेंगे, ओके? चलो बाय।